Hello everyone, this is Rohini Verma and welcome to my YouTube channel. Today we discuss class 10th chapter number 8. How do organism reproduce? That means एक single organism reproduction के through new organism कैसे produce करेगा. Okay, so first of all parent cell then produce new organism. This is called reproduction. Okay, so parent body reproduction के through new organism का production करता है. Reproduction is the process by which living organism produce new individuals similar to themselves. And parent body जो है वो hereditary material chromosomes carry करके रखता है. क्रोमोसोम्स वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन ट्रांसफ़र होता है. ओके, दैट मीन्स जब रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर होगा उस टाइम पे पेरेंट बॉडी से क्रोमोसोम्स न्यू इंडिविजुअल्स पे और ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफ़र होगा. So chromosome is a hereditary material that transfer one generation to second generation. So clear the term reproduction. Reproduction is a biological process that produce new organism. Okay, and transfer chromosome or hereditary material one generation to second generation. Next one is types of reproduction. So there are two types of reproduction. First one is sexual method and second one is asexual method. Okay, so in sexual method both parent male and female present, both male and female are present, and in asexual reproduction only one parent involves. Only one parent involves. Okay, and in sexual reproduction gametes are found. And in asexual reproduction gametes are absent or not found. ओके, एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन एंड इवोल्यूशनरी चेंजेस जो है वो देखने को मिलता है. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू गैमेट्स का फ्यूजन होता है. ओके, दिस इज मेल गैमेट एंड दिस इज फीमेल गैमेट. सो टू गैमेट्स का फ्यूजन होगा, देन न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा. सो यहाँ पे वेरिएशन एंड इवोल्यूशनरी चेंजेस जो है वो शो होता है. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेकंड पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है. सो यहाँ पे वेरिएशन एंड इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस चेंजेस जो है वो शो नहीं होता है. सो क्लियर डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व्ड. इन asexual reproduction only one parent involved. In sexual reproduction gametes are found, and in asexual reproduction gametes are absent. And sexual reproduction variation and evolutionary significant changes are found, and in asexual reproduction variation and evolutionary significant are not found. Okay, so next one is types of sexual reproduction. So first one is fission. Fission that means एनिमल बॉडी के न्यूक्लियस में डिवीजन होगा. एंड फिजन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन, सेकेंड वन इज मल्टीपल फिजन. सो फर्स्ट बाइनरी फिजन एग्जाम्पल्स एमीबा. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमीबा. दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज स्यूडोपोडिया. ओके, सो न्यूक्लियस पे डिवीजन होगा, देन न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूशन होगा इन फिजन. ओके, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, देन टू ऑर्गेनिज्म, टू न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा. ओके, दिस इज टू डॉटर सेल्स.
ओके, सो इन बाइनरी फिजन एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा के न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा, देन 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, सो दिस इज बाइनरी फिजन। इफ़ न्यूक्लियस डिवाइड होके अगर 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है, सो दिस इज नोन एज बाइनरी फिजन, एंड मोर देन 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, सो दिस इज नोन एज मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम, एंड प्लाज्मोडियम के न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, देन मैनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, दिस इज डॉटर सेल्स। ओके, दिस वन इज डॉटर सेल्स। So clear concept, fission that means divided nucleus division, and fission divided into 2 types, binary fission and multiple fission. In binary fission example amoeba, so amoeba का nucleus में division होगा and 2 daughter cells का formation होगा, and in multiple fission न्यूक्लियस डिवाइड होकर मोर देन 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगा एंड मोर देन 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, दिस इज नोन एज मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट वन इज बर्डिंग, so in birding example hydra, okay, this is the structure of hydra, this is parent cell, parent hydra, okay, then parent hydra पे एक स्पेसिफिक साइज पे एक स्मॉल आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होगा, ओके, दिस इज अ स्मॉल आउटग्रोथ, एंड ये स्मॉल आउटग्रोथ जो है वो एक स्पेसिफिक साइज पे होगा, देन इस पे रेपेटिव, देन इस पे कंटिन्यू सेल डिवीज़न होगा, देन सेल डिवीज़न होने के बाद में ये बर्ड का फॉर्मेशन करेगा, दिस इज बर्ड, देन बर्ड मैच्योर होने के बाद में पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा, ओके, दिस इज पेरेंट्स बॉडी, and this is mature new organism, new individual. Clear in birding, पेरेंट बॉडी पे एक स्पेसिफिक साइज पे एक आउटग्रोथ अपीयर, देन आउटग्रोथ में कंटिन्यू डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, देन बर्ड का फॉर्मेशन होगा, देन बर्ड पेरेंट बॉडी से सेपरेट होगा एंड एज अ न्यू इंडिविजुअल ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट वन इज रीजनरेशन, एग्जाम्पल प्लानेरिया, ओके, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर पेरेंट सेल और पेरेंट बॉडी ऑफ प्लानेरिया, ओके, सो इन रीजनरेशन प्लानेरिया 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, हेड पोर्शन, बॉडी पोर्शन एंड टेल पोर्शन, एंड एवरी पीसेस ऑफ प्लानेरिया हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, ओके, ओके, प्लानेरिया का बॉडी हेड पोर्शन, बॉडी पोर्शन एंड टेल पोर्शन डिवाइड हुआ है, पीसेस में डिवाइड हुआ है, देन एवरी पीसेस के पास में एबिलिटी होती है कि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करे, ओके, सो इन प्लानेरिया का बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, देन 3 पीसेस के पास में एबिलिटी होगी कि वो न्यू प्लानेरिया और न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है। सो क्लियर रीजनरेशन दैट मीन्स बॉडी पार्ट्स डिवाइड होगा मैनी पीसेस में एंड एवरी पीसेस के पास में एबिलिटी होगी कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन, सो स्पोर फॉर्मेशन एग्जाम्पल राइजोपस,
Okay, this is structure of rhizopus and this is parent body, and parent body में sporangium presence होता है. This is sporangium. Okay, this is sporangium and sporangium के inside पे spores presence होता है. Look, this is spores and spores जो है वो suitable condition पे sporangium से बाहर open होता है. Okay, this is spores. देन स्पोर्ट्स फेवरेबल कंडीशन पे, फेवरेबल कंडीशन दैट मीन्स कि स्पोर्ट्स को जर्मिनेट होने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमिडिटी और पीएच लेवल जो है वो इसेंशियल होता है. तो दिस इज फेवरेबल कंडीशन. ओके, सो फेवरेबल कंडीशन पे स्पोर्ट्स जो है वो जर्मिनेट होगा, देन न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करेगा. So clear concept in spore formation. This is example rhizopus. This is the structure of rhizopus, and in rhizopus sporangium are present. This is sporangium, and in inside of sporangium spores are present, and in favorable condition spores are germinate, then produce new organism. Next one is fragmentation. Example is Sparoglara. So in fragmentation, look, in fragmentation that means ऑर्गेनिज्म का बॉडी मैनी पीसेस में डिवाइड होगा एंड एवरी पीसेस हैव देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पायरोग्लारा. ओके, देन स्पायरोग्लारा का बॉडी मैनी पीसेस में डिवाइड होगा. ओके, देन यहाँ पे एवरी पीसेस जो है वो न्यू स्पायरोग्लारा का बॉडी प्रोड्यूस करेगा. सो यहाँ पे 4 न्यू स्पायरोग्लारा का फॉर्मेशन होगा और 1 स्पायरोग्लारा पेरेंट बॉडी से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, 4 डॉटर स्पायरोग्लारा का फॉर्मेशन होगा. सो क्लियर कॉन्सेप्ट. इन फ्यूजन न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन. न्यूक्लियस डिवाइड होकर अगर 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, सो दिस इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन. एग्जाम्पल्स अमीबा. ओके, सो अमीबा में न्यूक्लियस डिवीजन हुआ है, दिस इज न्यूक्लियस, देन 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है एंड न्यूक्लियस डिवाइड होकर मोर देन 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, सो दिस इज नोन एज मल्टीपल फ्यूजन. सो एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम बॉडी ऑफ प्लाज्मोडियम एंड इनसाइड पे डॉटर सेल्स, मैनी डॉटर सेल्स प्रेजेंस है. एंड इन हाइड्रा, इन बर्डिंग हाइड्रा एग्जाम्पल्स. सो हाइड्रा में एक स्मॉल आउटग्रोथ अपीयर होता है जो कि कंटिन्यू, जिसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, देन वो मेच्योर होता है, दिस इज नोन एज बर्ड. देन बर्ड मेच्योर होगा एंड वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा एंड एज अ न्यू इंडिविजुअल्स ग्रोथ करेगा. एंड इन रीजनरेशन एग्जाम्पल प्लानेरिया. सो प्लानेरिया को 3 पीसेस में डिवाइड किया जाता है, हेड, बॉडी एंड टेल. देन एवरी पीसेस हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म. सो 1 प्लानेरिया पेरेंट सेल से 3 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा. एंड इन स्पोर फॉर्मेशन एग्जाम्पल राइजोपस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस एंड राइजोपस में स्पोरेंजियम प्रेजेंस होता है एंड स्पोरेंजियम के इनसाइड पे स्पोर्स प्रेजेंस होता है एंड स्पोर्स के पास में एबिलिटी होती है कि वो जर्मिनेट होगा फेवरेबल कंडीशन में, देन न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करेगा. नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन. तो फ्रेगमेंटेशन एग्जाम्पल्स स्पायरोग्लारा. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पायरोग्लारा एंड स्पायरोग्लारा जो है वो मैनी पीसेस में डिवाइड होता है एंड एवरी पीसेस हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म. सो 1 स्पायरोग्लारा बॉडी से जितनी पीसेस में वो डिवाइड होगा उस पर डिपेंड करता है कि कितने न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पायरोग्लारा 4 पीसेस में डिवाइड हुआ है, सो 4 न्यू स्पायरोग्लारा डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व. सो यहाँ पे एनिमल को और ऑर्गेनिज्म को डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है रिप्रोडक्शन के लिए. ओनली 1 पेरेंट जो है वो रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है. ओके, एंड सेकेंड सिग्निफिकेंस दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. सो फास्टली जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है. एंड थर्ड वन इज पेरेंट
सिमिलर काइंड ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होगा उसमें जेनेटिक मटेरियल सिमिलर होगा अपने पेरेंट बॉडी से। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रैपिड मोड है। ओके, सो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो फास्टली ग्रोथ करता है और फास्टली प्रोड्यूस होता है, सो यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाता है। एंड सेकेंड वन इज यहाँ पे वेरिएशन एंड इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस जो है वो एब्सेंट होता है। सो न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा अपने पेरेंट बॉडी से जेनेटिकली, सो यहाँ पे वेरिएशन एब्सेंट होगा। नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दैट मीन्स प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट्स, दिस इज रूट, stem and leaves. So these are vegetative parts in plant. Okay, so प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स में रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन कराना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ओके, सो इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टू मेथड्स, फर्स्ट वन इज नेचुरल मेथड्स एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल मेथड्स। ओके, सो नेचुरल मेथड्स जो है वो नेचुरल कंडीशन पे होता है एंड आर्टिफिशियल मेथड्स जो है वो मैन मेड मेथड्स है। Man-made method. Okay, so in natural method divided into three types. First one is by root, by stem and by leaves. Okay, so by roots के through, these are roots. Okay, so roots के through वन प्लांट से सेकेंड प्लांट का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज रूट, एग्जाम्पल दहेलियास। ओके, सो दहेलियास का न्यू रूट के थ्रू न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। इन स्टेम, so this is stem, this is leaf. Okay, stem, leaf and root. Okay, so stem के थ्रू जब न्यू प्लांट अराइज होगा, सो दिस इज नोन एज स्टेम मेथड, एग्जाम्पल्स पोटैटो एंड जिंजर। नेक्स्ट वन इज लीव। सो जब लीफ के थ्रू न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, सो दिस इज नोन एज लीफ मेथड्स, एग्जाम्पल ब्रायोफिलम। ओके, सो ये ब्रायोफिलम का लीफ है, देन लीफ से न्यू लीव्स का फॉर्मेशन, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, so this is new plant. So clear, examples ब्रायोफिलम, by root से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा, स्टेम दैट मीन्स स्टेम से न्यू प्लांट अराइज होगा एंड लीफ से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। दिस इज नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मैन मेड मेथड। सो डिवाइडेड इनटू many types. First one is grafting. So grafting, that means two different plants same species. Okay, का स्टेम कलेक्ट किया जाता है, देन दोनों को मर्ज किया जाता है, एक साथ कोलैब किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन जो है वो यहाँ पे नाइफ के थ्रू रफ किया जाता है, नाइफ के थ्रू यहाँ ये वाला पोर्शन जो है वो निकाल दिया जाता है, देन दोनों को एक साथ टाइटली इसको बांध देंगे, नॉट कर देंगे, देन इसको पॉट में जो है वो पॉट में ऐड कर दिया जाएगा। सो एग्जाम्पल्स मैंगो। ओके, ग्राफ्टिंग दैट मीन्स टू डिफरेंट प्लांट सेम स्पीसीज का स्टेम लेंगे, देन उसका वन एरिया जहाँ से वो उसको मिक्स करना है उस एरिया को नाइफ से रफ कर देंगे, देन उसको टाइटली जो है वो नॉट कर देंगे, देन उसको पॉट में जो है वो लगा देंगे। सो एग्जाम्पल्स मैंगो। सेकेंड वन इज लेयरिंग, एग्जाम्पल जैस्मिन। ओके, सो लेयरिंग में जो है वो 1 year old प्लांट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज डायग्राम ऑफ लेयरिंग और दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ जैस्मिन प्लांट। ओके, सो जैस्मिन प्लांट का 1 year old प्लांट का एक स्टेम को लेंगे एंड उसको जैसे सॉइल एरिया। ओके, सॉइल पे जो है वो उसको सॉइल के अंडर पे जो है सॉइल के नीचे जो है स्टेम का एक पार्ट रहेगा, देन
ओके, देन आफ्टर सम टाइम यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन होगा। देन जैसे ये रूट का फॉर्मेशन होगा, फॉर एग्जांपल 1 मंथ और 2 to 4 वीक्स में रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन इसको सेपरेट कर दिया जाता है पेरेंट बॉडी से, एंड ये एक एज अ न्यू इंडिविजुअल न्यू जैस्मिन प्लांट ग्रो करता है। ओके, दिस इज पेरेंट प्लांट एंड दिस इज डॉटर प्लांट। नेक्स्ट वन इज कटिंग। सो कटिंग बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीफ। ओके, सो रूट का कटिंग करके न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन किया जाता है, एग्जाम्पल्स लेमन। स्टेम को कटिंग के थ्रू न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा, एग्जाम्पल रोज। एंड लीफ, सो लीफ में कटिंग करने से, लीव्स को मैनी पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर एक पीस जो है वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ओके, दिस इज एग्जाम्पल्स स्नेक प्लांट। फोर्थ वन इज टिश्यू कल्चर। ओके, सो टिश्यू कल्चर में ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा पीस लिया जाता है, फॉर एग्जांपल दिस इज ऑर्गेनिज्म, देन इसका एक छोटा सा पीस लिया जाएगा एंड इसको कल्चर मीडियम में, लेबोरेटरी कंडीशन पे इसको कल्चर मीडियम में रखा जाता है। देन इसमें ग्रोथ होगा एंड रूट का फॉर्मेशन होगा। ओके, स्मॉल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा कल्चर मीडियम में ही। ओके, देन इसको पॉट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ओके, क्लियर। टिश्यू कल्चर, ऑर्गेनिज्म का और प्लांट का एक स्मॉल पीस लिया जाएगा एंड उसको लेबोरेटरी कंडीशन में टिश्यू कल्चर में रखा जाता है। देन एक स्मॉल पीस जो है वो ग्रोथ करता है, देन उसके बाद में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इन पॉट में। नेक्स्ट वन इज गूटी 5। सो गूटी जो है वो एरियल कंडीशन पे होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, दिस इज प्लांट। ओके, सो प्लांट का जो वन पोर्शन होता है, फॉर एग्जांपल ये एरियल स्टेम है। ओके, जो कि रूट से ऊपर प्रेजेंस होता है, एरियल स्टेम। सो स्टेम का कुछ एरियाज 2 to 5 सेंटीमीटर को यहाँ का बार्क को रिमूव कर दिया जाता है। देन इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से कवर करके रखा जाता है। फर्स्ट बार्क को रिमूव किया जाएगा, देन इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसको कवर कर दिया जाता है, देन पॉलीथीन से इसको रैप कर दिया जाता है जिससे कि यहाँ पे जो है वो ड्राइनेस ना हो। देन कुछ टाइम के बाद में यहाँ से रूट का फॉर्मेशन होता है। देन ये वाला पोर्शन जो है उसको सेपरेट कर दिया जाता है प्लांट बॉडी से, एंड ये पोर्शन जो है वो एज अ न्यू प्लांट ग्रोथ करता है। यहाँ से रूट का फॉर्मेशन होगा, जब इसको रिमूव करेंगे आफ्टर सम टाइम, सो यहाँ से रूट का फॉर्मेशन होगा एंड ये एज अ न्यू प्लांट ग्रोथ करेगा। ओके, सो क्लियर। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इन नेचुरल मेथड रूट, स्टेम एंड लीफ के थ्रू न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, एंड इन ग्राफ्टिंग 2 प्लांट्स के स्टेम को जो है वो मिक्स करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है। लेयरिंग, सो लेयरिंग्स एग्जाम्पल जैस्मिन। सो 1 year ओल्ड प्लांट का स्टेम को सॉइल के नीचे रखा जाता है एंड आफ्टर सम टाइम वहाँ से रूट का फॉर्मेशन होता है। देन उस प्लांट्स को प्लांट बॉडी से सेपरेट कर दिया जाता है एंड वो एज अ न्यू प्लांट ग्रोथ करता है। ओके, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ जैस्मिन एंड ये ओल्ड स्टेम है जिसको सॉइल के नीचे प्रेजेंस है एंड कुछ टाइम के लिए सॉइल के नीचे रखा जाता है। देन कुछ टाइम के बाद में इसमें रूट का फॉर्मेशन होता है एंड जो प्लांट्स हैं उसको वो एज अ न्यू प्लांट वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज कटिंग। सो रूट, स्टेम एंड लीव्स में कटिंग करके न्यू प्लांट बॉडी का और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है। टिश्यू कल्चर। सो टिश्यू कल्चर्स में ऑर्गेनिज्म और प्लांट का एक स्मॉल पीस लिया जाता है, उसको लेबोरेटरी कंडीशन में टिश्यू कल्चर प्रोवाइड किया जाता है। देन वो ग्रोथ करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है, दिस इज न्यू प्लांट। देन उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पॉट में। एंड गूटी, सो गूटी दैट मीन्स एरियल कंडीशन पे स्टेम के कुछ एरिया को 2 to 5 सेंटीमीटर के बार्क को रिमूव किया जाता है। देन वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड किया जाता है और उसको पॉलीथीन से रैप कर दिया जाता है जिससे कि वहाँ पे ड्राइनेस ना हो एंड आफ्टर सम टाइम वहाँ से रूट का फॉर्मेशन होता है। देन जो स्टेम है वो एज ए न्यू प्लांट ग्रोथ करता है एंड इसको प्लांट बॉडी से सेपरेट कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके,
सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो एक रैपिड मेथड है, ओके। यहाँ पे कुछ कम टाइम में न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। सेकेंड वन इज जेनेटिकली सिमिलर होगा, पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल एंड न्यू ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल जो है वो सिमिलर होगा, ओके। सो एंड नेक्स्ट वन इज थर्ड ग्राफ्टिंग, ओके। ग्राफ्टिंग के थ्रू जो है वो न्यू वेराइटीज़ का प्लांट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड, ओके। सो फर्स्ट वन इज ओवर क्रॉडिंग, जस्ट बिकॉज ये ईजिएस्ट मेथड है एंड न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो काफ़ी जल्दी प्रोड्यूस होता है, सो ओवर क्राउडिंग होता है। पॉइंट इज़ कि यहाँ पे वेरिएशन तो नहीं होता है। वेरिएशन जब तो होता है जब टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट फ्यूज़ होता है, बट यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स नहीं है, यहाँ पे ओनली वन गैमेट है, सो यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। एंड डिस्पर्सन जो है वो ज़ीरो होता है और एब्सेंट होता है। डिस्पर्सन दैट मीन्स कि सीड जो है वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव फेज में होता है, ओके। सो यहाँ पे डिस्पर्सन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में डिस्पर्सन एब्सेंट होता है। एंड लास्ट वन इज़ कि अगर प्लांट बॉडी को और पेरेंट प्लांट को कुछ डिसीज है तो वो न्यू प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। सो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ओके। सो क्लियर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मेथड एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आई होप you understood very well, and if any queries you can comment below or also you can contact us. Thank you.